dress kind of. This I really want to wear for my fashion award. And maybe something else for them, you know? Yeah, something like, you know, which is a little more fashion like this and not just usual gown. So we'll do that. But for filmfare also, I think, I mean, I personally feel it should work. They look really nice. The skin color and all looks very nice with the color. Will stand out. It'll stand out. It'll stand out more than your gowns. That is also true. So let's see with time. I'll go back and change my pictures today also. Yeah. You decide. I mean, I feel that. Is your Is this new? Yeah. On the front, it's ulta lagaya tumhara. Front is facing backwards. बाद में हो गया. I'll do that. अच्छा later. Anyway, I understood your front cap. बेटा This matter same. You can see, no? No, I didn't see this one. This is also new. Is this new? That's why I haven't seen them. No. They were just, I didn't have them just of your size with it. Oh, okay. Some of them new, some of them not. Even the jumpsuit was Nah, this didn't fit me. I know it's alright. This was there. If you like a jumpsuit, now you can take it in a size for your fashion award also. That's also Yeah. a लास्ट खाली के thing to Yeah. Just for for that- drama, we can think of something else. That specifically I wanted to wear not a typical award thing. And I specifically I wanted to wear something that's more fashion than just gown. What are you wearing so far for that? Decided one of the cost. I've never worn a cost. Yeah. थैंक यू So nice. Yeah. And I've not seen many people working on Everything is hand woven. Handloom silk. Handloom, like hand woven wool. It becomes very premium. Yeah, it is very good. It looks really very high. Europe is responding very, very well. Europe is actually responding better than India. Really? Yeah, because this is very much there. Yeah, color palette. Color palette. It's very pastel, muted pastel. Right. So we'll be doing a show in London. Oh, nice. I think I better should. That and then let's see next season what else picks up for us. लग रहा है Thank you. और इस आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे, काफ़ी यूनिक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निधि आशा की आउटफिट है, उसका फर्स्ट कलेक्शन है इनफैक्ट, एंड वन ऑफ दोज वेरी फ्यू अपकमिंग डिज़ाइनर जिनके साथ मैंने काम किया है, और मेरे को पहली लुक में ही पहली फोटोग्राफ देख कर ही उसका आउटफिट इतना पसंद आ गया था कि मैंने उसका पूरा कलेक्शन घर मंगवा लिया था ट्राई करने के लिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ रखनी है। उनमें से एक चीज़ ये है, एक आउटफिट ये है जो मैंने डाल रखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केप है, आप देख सकते हैं इसके पीछे जितना काम हुआ पड़ा है, इसके मतलब आपको रेयरली ऐसा कोई पीस मिलता है देखने को किसी की कलेक्शन के अंदर। सो ये मेरा एकदम से इसने मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया था इस टाइप के डिज़ाइन ने, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने काफ़ी इवेंट्स और लुक्स में इसके आउटफिट ज़रूर डालूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है, आप देखिए इंडियन कारीगरी का विद वेस्टर्न टाइप ऑफ कट्स, या फिर इंडियन टेक्सटाइल का जिसको उन्होंने वेस्टर्न टाइप के लुक में ढाला हुआ है, तो वो बहुत अच्छा फ्यूजन है इन दोनों चीज़ों का। वो मेरा फेवरेट स्टाइल ऑफ फैशन कह लीजिए है, एक फ्यूजन स्टाइल जो होता है वो, इसलिए मुझे इसके आउटफिट्स बहुत पसंद है। अच्छा, वैलेंटाइन डे आने वाला है, आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए, तो कोई ड्रेस पसंद किया है आपने या फिर पहले से खरीद लिया है आपने? देखिए, एक तो जो मैंने डाल रखा है वो मैंने बिल्कुल पसंद कर लिया, और मेरे यहाँ आधा एटलीस्ट आधा यहाँ पे स्टॉक ऐसा है जो मेरा पसंद करा हुआ है। वो उसमें से कितना मुझे मिल पाता है या नहीं वो मैं बाद में देखूंगी, जब भी पूरा सेल हो जाएगा तब तक। बट मैं चाहूँगी कि मैं काफ़ी कुछ रख सकूँ, क्योंकि एक से एक बढ़कर है इसका एक एक पीस, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है हर कुछ यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले आपने बताया कि काफ़ी आउटफिट आपने घर पे भी संभाल के रखे हैं, तो उसमें से भी कोई
प्रिपेयर करना चाहेंगे 14 फेब के लिए? 14 फेब के लिए हाँ क्यों नहीं। अगर कुछ इस तरह का लाइट सा आउटफिट हो वो प्रिपेयर करना चाहूँगी, या फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि पिंक होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसके सारे ही आउटफिट्स इतने प्रिटी और इतने डेलिकेट और ब्यूटीफुल से हैं कि मैं कुछ भी डाल सकती हूँ उसमें से। मेरे को कोई मतलब जो मन करेगा उस टाइम उस दिन मूड करेगा कोई भी उठा के डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई ड्रेस की बात, और प्रिपरेशन क्या की है अपने डेट के लिए आपने? अरे आई होप प्रिपरेशन कोई करी होती। अभी तक मेरे को ये नहीं पता कि उस दिन मैं इंडिया के कौन से कोने में होंगी और क्या कर रही होंगी। अगर मौका मिला कि छुट्टी हुई उस दिन तो उस टाइम हो सकता है कि मैं लाल कलर की ड्रेस डाल के कहीं पे बाहर चली जाऊं, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो मुझे डेट के लिए पूछ ही लेगा, या कोई ना कोई तो मुझे एक चिट्ठी छोड़ जाएगा या एक फ्लावर छोड़ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता आ रहा है मेरे साथ। कॉलेज टाइम में भी मेरे को कोई सामने आके कुछ नहीं बोलता था, एक चिट्ठी आ जाती थी कहीं से या एक फ्लावर आ जाता कहीं से। तो उसकी उम्मीद करूँगी अगर छुट्टी हुई हो ना तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है किसी न किसी काम पे ही होंगी। जैसे कि रेड कलर जो है लव का साइन होता है, तो आपने ऐसा कुछ गिफ्ट मिला है आपको इससे पहले या ऐसा कुछ? मेरे को रेड कलर का जो मुझे मिला है वो सिर्फ फ्लावर मिला है। वो रोज़ का एक फ्लावर आ जाता है रेड कलर का, और उसके अलावा मुझे कोई स्पेशल वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स नहीं मिले हैं। क्योंकि वो ज़्यादातर वैलेंटाइंस जो आके प्रपोज करना चाहते भी होते हैं उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई गिफ्ट ला के दें। वो एक चिट्ठी पहुँचा दे वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लाल कलर का सिर्फ मुझे एक रोज़ मिला है। अच्छा, तापसी, बात वैलेंटाइन की हो रही है। अगर आपको बॉलीवुड में मौका मिले किसी को डेट करने का, या किससे डेट करना चाहेंगे आप? आई थिंक अब तक तो सारे ऑडियंस भी थक चुके होंगे सुन के मेरा आंसर। मैं तो तब से चिल्ला के बोल रही हूँ कि एक इंसान जिसके साथ मैं पक्का डेट पे जाना चाहती हूँ बॉलीवुड के जो है वो है ऋतिक रोशन। मतलब उनके लिए मैं रेडी हूँ। कभी भी वो मुझे डेट के लिए पूछ लेंगे वैलेंटाइंस हो कि ना हो तब भी चली जाऊँगी। तो अभी ऋतिक भी फिलहाल सिंगल ही है, तो आप क्या उनको अप्रोच करेंगे इस वैलेंटाइन डे? अभी ये कन्वेंशनली सही नहीं है ना। अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि वो मुझे अप्रोच कर लें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी आपको रोज देने की, और अभी बेबी करने के बाद तो अभी किसी की भी नहीं होगी। वो अच्छी बात है एक्चुअली, ताकि जिन लोगों की वैसे जिनमें हिम्मत नहीं है वो तो आके ना ही बात करें मुझसे तो बेटर है। तो जिनमें हिम्मत होगी एक्चुअली वो आके मुझसे बात करेंगे, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, जैसे तापसी को अगर लड़का चुनना हो तो क्या क्वालिटी होगी आपके डेट में? क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके डेट में? अब आप सीरियस नोट पे पूछ रहे हैं कि फन वाले मोड में पूछ रहे हैं? नहीं, सीरियस मोड में पूछ रहे हैं। सीरियस मोड पे ये बोलूँगी कि एक ऐसा इंसान चाहिए जो प्यार से ज़्यादा मुझे इज्जत करता हो। क्योंकि मेरे को लगता है प्यार तो बाद में आ जाता है, पहले इज्जत होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो वो जो इंसान मेरी इज्जत करेगा जैसी मैं हूँ उस चीज़ के लिए मुझे इज्जत देगा, चेंज करके मुझे इज्जत देने की कोशिश नहीं करेगा, उस इंसान से प्यार हो सकता है, उसी इंसान से मैं प्यार में पड़ूंगी। अच्छा, आखिर में जाते आते बेबी तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिला है आपके किरदार के लिए, इसके बाद कोई मूवी आपको अप्रोच हुई है? क्या कुछ हो रहा है पाइपलाइन में? एक्चुअली अप्रोच तो हुई है, बट जो पिक्चर मैं आगे करने वाली हूँ, जो आगरा का डावरा मैं करने वाली हूँ, और जो बाकी पिक्चर एक दो स्क्रिप्ट्स मैंने सुनी हैं वो मुझे बेबी के पहले ही ऑफर हो चुकी थी। तो उन्हीं की स्क्रिप्ट रीडिंग और उन्हीं की ही अभी डिस्कशन चल रही है कि मैं करूँगी कि वो मतलब डील फाइनलाइज होएगी कि नहीं। अभी कोई ऐसी पिक्चर नहीं आई है स्पेसिफिकली जो कि बेबी की रिलीज़ के बाद आई है और मुझे बहुत पसंद आ गई है। उसके पहले वाली ही मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है, तो अभी उन्हीं की डिस्कशन पे हूँ मैं। अच्छा, बॉलीवुड एक्टर से किसी से कोई कॉम्प्लीमेंट आया आपको कि हाँ आपका किरदार काफ़ी अच्छा था या ऐसा कुछ? बॉलीवुड एक्टर्स से देखिए मैं ना इतना इन टच में नहीं हूँ काफ़ी बॉलीवुड के लोगों से। जिन लोगों से इन टच हूँ वो वही हैं जिनके साथ मैंने काम कर रखा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब सामने से डेविड सर ने खुद फ़ोन करके मुझे बोला था कि मज़ा आ गया तेरे को देख के, मज़ा आ गया। क्योंकि उनका ना बहुत ही रॉ और एकदम ऑन द फेस उनका स्टाइल है। वो एकदम बातें घुमा फिरा के नहीं करते, वो एकदम बैंग ऑन मतलब की बात बोलते हैं। वरना मुझे वो अगर उनको नहीं पसंद आता वो कभी नहीं फ़ोन करते, वो ऐसे झूठा दिलासा देने के लिए कभी नहीं करेंगे। और उन्होंने जो कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं, उन्होंने इस तरह की पिक्चर जिसमें एक गाना तक नहीं है वो शुरू से लेकर एंड तक बैठ के देखी है, और उन्होंने सेकंड हाफ आने का वेट किया है, मेरा रोल देखा है पूरा बाकायदा। तो मतलब उनको जेन्युइनली पसंद आई है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।